हेलो फ्रेंड, वेलकम टू तुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है और डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, लास्ट डेट क्या है, कौन भर सकता है, एक्सेट्रा। इस डिटेल्स के लिए चलिए देखते हैं इस बार क्या कुछ है। यहाँ देखिए, जनरल में दिया हुआ है देयर आर 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स एपीएस लोकेटेड इन वेरियस कैंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस इंडिया. These schools are administered and managed by local army authorities and affiliated to CBSE through Army Welfare Education Society, that is AWES. A list of these schools is placed at Annexure 1. There are approximately 8,000 teachers on the rolls of these schools. Out of these, a large number get turned over every year due to various reasons. Note the exact number of vacancies available in the respective school will be announced by the school management while advertising for holding interview evaluation of teaching skills. In the last 2 years, the number of total vacancies in different categories were 2315 and 2169 respectively. Vacancies could be regular or for a fixed term, which shall be informed along with the announcement of the vacancies. Appointments which fall in the category of would be liable to transfer in organizational interest. अब सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होना है देख लीजिए. The selection of teachers will be done in 3 stages. Stage number 1, a screening exam. An online screening test will be conducted on 21st and 22nd November 2020 for vacancies that will arise during the ensuing academic year. This shall be conducted online by an agency identified by HQAWS centrally to ensure uniform quality of teachers in all Army public schools. Those who qualify in this stage will be given a scorecard which shall be valid for life provided the candidate picks up a teaching job within 3 years from the date of passing the screening exam in any CBSE affiliated schools for a continuous duration of at least 1 year. A scorecard will make candidates eligible to appear for the remaining stage for the selection process. मतलब यदि आपके पास स्कोर कार्ड है तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते. इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट द फॉलोइंग में also appear for the screening test. Holders of score cards who want to improve their scores. Second, those desirous of upgrading themselves, for that is a candidate holding scorecards of TGT may now want to obtain a card for PGT having acquired additional qualification. मतलब देखो, स्कोर कार्ड में आप इसमें चाहो तो इम्प्रूवमेंट भी करा सकते हैं, मतलब इसका प्रमोशन भी हो सकता है, इसका अपग्रेड भी हो सकता है इसका. प्लीज नोट दैट होल्डिंग स्कोर कार्ड बाई इटसेल्फ डज नॉट entitle you to an appointment as teacher in any Army public school. It only renders you eligible for stage number 2 and 3 for the सिलेक्शन प्रोसेस. मतलब यदि आपके पास स्कोर कार्ड है तो तभी आप स्टेज 2 और 3 में जा सकते हैं आप. अब चलिए स्टेज 2 में क्या कुछ है देख लेते हैं. स्टेज 2 इंटरव्यू. एज स्टेटेड एट नोट टू पारा 2 above, the respective school shall announce the vacancies available through various means like local newspaper, the school website, notice board, etc. Candidates would have to appear in response to these announcements. The interviews may or may not be at the location of the school. They may be held as per discretion of the local management at convenient place at one of other schools. ये सब देखो जो स्टेज 2 में है आप देख सकते हैं. आप स्टेज 3 देखिए क्या कहता है. Evaluation of teaching skills and computer proficiency. For language teachers, written test comprising essay and comprehension of 15 marks each will be held along with evaluation of teaching skills. Selection committee may also hold computer proficiency test if they so desire. उसके बाद आप देख लो यहाँ पर नोट में है स्टेज नंबर 2 and 3 will be held in tandem under the aegis of board administration at HQ command/school management. चलो अब देख लेते हैं सीधा इस पर कि ऑनलाइन टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होना है कैसे. ये तो पता चल गया आपको कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपके 21 और 22 नवंबर को होना है. टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स.
द कैंडिडेट शुड हैव पास द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद यानी कि स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज के जा पाएंगे आप। द जनरल गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स आर गिवन इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ्स। कैटेगरीज ऑफ टीचर्स, द एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी फॉर सब्जेक्ट्स एज पर लिस्ट प्लेस्ड एट एनेक्सर 2। पहले आप इसमें देख लेते हैं ये क्वालिफिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ से कि पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ से चेक कर लीजिए आप। टीजीटी और पीआरटी क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद अ पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट मोर देन 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन विद ए सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर ऑल्सो आर एलिजिबल। मतलब यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एज कितना होना चाहिए आपका। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए एज जो है बिलो 40 ईयर्स है, और इसमें जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है उसके लिए बिलो 57 ईयर्स है, ठीक है। और उसमें कैटेगरी वाइज जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो तो होना ही है। सी नंबर देखिए, सी पॉइंट देख लीजिए आप। सी टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब जो पहला एग्जाम आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें सी टेट जरूरी नहीं है। हाउएवर सी टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज टीजीटी पीआरटी। लेकिन यदि मान लो सिलेक्शन आपका पीआरटी या टीजीटी के लिए हो गया तो उसमें फिर आपको सी टेट या टेट का मैंडेटरी है आपके पास होना चाहिए। दोज नॉट क्वालिफाइड इन सी टेट टी टेट बट फाउंड फिट इन ऑल द अदर रिस्पेक्टिव मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंसीज which may be ad hoc in nature till attainment of qualification। मतलब यदि आपका इसमें फाइनली आपको सेलेक्ट कर लिया गया या आपने टेट आपके पास सी टेट या टेट आपने नहीं किया हुआ है तो आपको एड हॉक बेसिस पर अपॉइंटमेंट मिलेगा, और जैसे ही आप ये कर लेते सी टेट या टेट को क्वालिफाई कर लेते फिर आपको उसके आगे का प्रोसीजर किया जाएगा आपका। द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 2020 विल बी कंडक्टेड एज अंडर। 21-22 नवंबर का डेट ये इसके पहले मेंशन हो चुका है। और बी जो इसका पॉइंट है मेथड, टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द एमसीक्यू फॉर्मेट फॉर डिटेल्स। इसमें देखिए जो टेस्ट आपका होगा पीजीटी और टीजीटी का आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट ए क्या क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ से, और पार्ट बी में आप देख सकते हैं यहाँ से स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, ठीक है। ये 90 मार्क्स का होगा, और ये जो जनरल सब्जेक्ट होगा आपका ये भी 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल 180 आवर्स का होगा, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा आपका ये। और फॉर टीजीटी पेपर्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट देयर विल बी अ पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस परटेनिंग टू पैरेलल सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल टीजीटी फिजिक्स पेपर विल हैव 10 क्वेश्चंस इन ईच ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और पीआरटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से पीआरटी में आपका पार्ट ए है जिसमें कि ये पूछा जाएगा आपसे, ये भी 90 इसमें मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स का होगा आपका, ठीक है। उसके बाद स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन फीस का है 500 जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसका जो साइट वेबसाइट एड्रेस है ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप आगे प्रोसीड कर सकते। और इसका जो डेट, ये ऑनलाइन प्रोसीजर का जो डेट है एप्लीकेशन का, ये 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर फ्रॉम 10 AM ऑन 1 अक्टूबर टू 5 PM ऑन 20th, यानी कि लास्ट डेट इसका है 20 अक्टूबर जो कि 5 बजे शाम तक है, 5 PM तक है। और उसके बाद इसमें डिटेल्स सर आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसका जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का जो डेट है वो मैंने बता दिया आपको, 21 और 22 नवंबर को है। Candidates would be able to take mock test online to familiarize them with the exam procedure. A link for this will be available on the registration portal with effect from 4th November 2020 to 30th November 2020. आप एग्ज़ाम सेंटर से देख सकते हैं कहाँ पड़ेगा इसका, चूँकि ऑल इंडिया बेस का भी ये जॉब है तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ से 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन ये 4th नवंबर को ये ऑनलाइन हो जाएगा।
उसके बाद एग्ज़ाम आपका 21-22 नवंबर को है और पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट होगा 2 दिसंबर का। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी है, आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप। इसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पर पार्ट ए के लिए 50 रुपीज़, पार्ट बी के लिए 50 रुपीज़ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट डिटेल्स, देखिए अच्छी तरह से पढ़ लेना आप। इसके पहले भी ये देखिए आप जो है लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, टोटल 137 स्कूल है जिसका लिस्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसके लिए वैकेंसी आया हुआ है पीजीटी और टीजीटी के लिए। और उसके बाद पीएचडी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप ये सब देख सकते हैं यहाँ से। टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। और पीआरटी के लिए देखिए ग्रेजुएट एंड 2 years डिप्लोमा दैट इज डीएलएड और बीएड और 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बीएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये सारा इसमें जो क्वालिफिकेशन आप अच्छी तरह से देख लेना। अब लिस्ट ऑफ टाउन सिटीज़ वेयर एग्ज़ाम सेंटर्स, जो सेंटर आपको जो मिलने वाला है ये डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर है जो कि आपको इसमें लिस्टेड है, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं ले चलता हूँ उस वेबसाइट पर जहाँ पर ये सब सारा आपको मिलेगा। ये देखिए है आपका एपीएस का वेबसाइट जहाँ पर आपको आना है। और यहाँ पर आने के बाद आप देख लीजिए ये है रजिस्ट्रेशन, इसमें लिखा हुआ है ना। रजिस्ट्रेशन में देखिए स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन, इसको जब क्लिक करेंगे आप तो देखिए आपको क्या कुछ दिखेगा। इसको हमने क्लिक किया तो देखिए आपको एक पेज ओपन हुआ, इसमें दिया हुआ कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना कि आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद चलो हम बैक चलते हैं। फिर उसके बाद देखिए न्यू यूज़र, अब जो न्यू यूज़र है उसके लिए क्या करना है, यहाँ जैसे आप क्लिक करते तो फिर आपके लिए देखिए जो हमें अभी हमने डिस्कस किया ये सारा आपको ये यहाँ पर ओपन होगा, वो वही सारा है जो हमने डिस्कस किया अभी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, बाकी इसमें कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है। और उसके बाद एग्जिस्टिंग, जैसे मान लो कि एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, जैसे मान लो कि पहले से जिन्होंने अकाउंट बना रखा है तो उनके लिए यहाँ से करेंगे और न्यू यूज़र के लिए यहाँ से होगा, ठीक है। और स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से दिया हुआ है। कोई दिक्कत होता है इसमें फॉर्म भरने में आपको यहाँ से, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते। तो अभी आपने देखा कि एपीएस में एक बम्पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इसको आप भरिए। इसका 1 तारीख से शुरू हो चुका है, 1 अक्टूबर से, इसको आप ज़रूर भरिए। ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ शेयर किया गया। और इस तरह के लगातार अपडेट, लगातार इन्फॉर्मेशन, लगातार वैकेंसी या फिर किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट या फिर कोई टेस्ट सीरीज या कोई जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो या फिर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, तो यहाँ पर लगातार जो है ना हमारे चैनल पर यानी अतुल्य कोचिंग चैनल पर ये अपलोड होते रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन, अपडेट, अलर्ट लगातार मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। और कुछ पूछना हो, कहना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते। और सबसे ज़रूरी बात, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखो लाइक इसलिए करना है आपको क्योंकि हमारी टीम जो है एक वीडियो को बनाने के लिए, जैसे मान लो कि कोई 10 मिनट का वीडियो है तो उसके लिए उसको कम 3 से 4 घंटे खर्च करना पड़ता है। तो एक वीडियो को देखो लाइक करना बनता है, ठीक है, ताकि हमारी टीम का जो है एनर्जी बना रहे, उत्साह बना रहे और आपके लिए लगातार इस तरह का वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।